Basics of antimicrobial therapy. Pathogens are microbes that are capable of causing disease. Human pathogens include virus, bacteria, fungi, unicellular organisms like protozoans, and multicellular animals like fleas, mites, and worms. Pathogens may enter through broken skin or by ingestion, inhalation, or contact with the mucous membrane, such as nasal, urinary, and vaginal mucosa. Pathogenicity: the ability of an organism to cause infection, or pathogenicity depends on an organism's ability to evade or overcome the body's defense. कोई भी organism जो disease cause कर सके वो पैथोजन कहलाता है, और उसकी जो disease causing ability है उसको हम pathogenicity कहते हैं. और ये जो ability है it depends on, so pathogenicity is ability to evade or overcome the body's defense. Fortunately, of the millions of species of microbes, only a relative few are harmful to human health. Virulence. Another common word used to describe a pathogen is virulence. A highly virulent microbe is one that can produce disease when present in minute number. Invasiveness and toxin production. तो अब ये दो मैकेनिज्म्स हैं जिसकी वजह से पैथोजन डिजीज कॉज करते हैं. उसमें पहला है इन्वेसिवनेस और दूसरा है टॉक्सिन प्रोडक्शन. इन्वेसिवनेस is the ability of a pathogen to grow extremely rapidly and cause direct damage to surrounding tissues by their sheer number. Because a week or more may be needed to mount an immune response against the organism, this rapid growth can easily overwhelm the body's defenses. अब होता क्या है कि जिस वक्त कोई बैक्टीरिया या पैथोजन हमारे बॉडी में एंटर होता है तो वो किसी टिश्यू के साथ अटैच होता है, वहाँ पे लॉज होता है, और वहाँ पे लॉज होने के बाद वो मल्टीप्लाई होता है, उसका नंबर इंक्रीज होता है, और उससे पहले कि हमारा इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट कोई एक्टिविटी करे, उसके अगेंस्ट कोई एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हों, उसके टॉक्सिन्स के अगेंस्ट कोई एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हों, वो हमारे सिस्टम को ओवरवेल्म कर देता है. Body's जो defense है that is overwhelmed easily because of its increased number. A second mechanism is the production of toxins. Even a very small amount of some bacterial toxin may disrupt normal cellular activity, and in extreme cases it can cause death. Now we will see the classification of bacteria. Because of the enormous number of different bacterial species, several descriptive systems have been developed to simplify their study. One of the simplest method of classifying bacteria is to examine them microscopically after a crystal violet gram stain is applied. तो हम बैक्टीरिया को based on their staining properties हम उनको क्लासीफाई करते हैं. दो उनके ग्रुप्स हैं, एक को हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहते हैं and the second one is gram negative bacteria. Gram positive bacteria, these contain a thick cell wall and retain a purple color after staining. These are called gram positive bacteria and include Staphylococci, Streptococci and Enterococci. And the second type is gram negative bacteria. The bacteria that have thinner cell walls will lose the violent stain and are called gram negative bacteria. Example of gram negative bacteria include bacteroids, E. coli, Klebsiella, Pseudomonas and Salmonella. The distinction between gram positive and gram negative bacteria is a profound one that reflects its important biochemical and physiological differences between the two groups. Some antibacterial medications are effective only against gram positive bacteria, whereas others are used to treat gram negative bacteria. तो ये उनके स्टेनिंग प्रॉपर्टीज की वजह से हम बैक्टीरिया को क्लासिफाई करते हैं. अब अगर हम देखते हैं कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की क्या डिफरेंसेस हैं, तो ये राइट साइड पे डायग्राम में आप देख सकते हैं. द अपर वन शोज ग्राम पॉजिटिव एंड द लोअर वन इज शोइंग ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. इसमें सबसे पहले जो इनर मोस्ट पार्ट है दैट इज सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन के बाहर स्पेस है जिसे हम पेरीप्लाज्मिक स्पेस कहते हैं,
उस स्पेस के एडजेसेंट ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों में पेप्टिडोग्लाइकेन, जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में एक और एक्स्ट्रा लेयर होती है, लेकिन उस लेयर से पहले फिर इसमें पेरिप्लाज्मिक स्पेस है। उस पेरिप्लाज्मिक स्पेस के बाहर लाइपोपॉलीसैकेराइड और प्रोटीन्स की एक आउटर मेम्ब्रेन है, जबकि ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया है उनकी सेल वॉल ही थिक है, जिसकी वजह से उसमें जो ग्राम स्टेन है वो उसके अंदर रह जाता है और वो वायलेट कलर उनका शो होता है। A second descriptive method is based on cellular shape. Bacteria assume several basic shapes that can be easily determined microscopically. हम बैक्टीरिया को जब माइक्रोस्कोप के अंदर एग्जामिन करते हैं तो वहाँ पे हमें उनकी डिफरेंट शेप्स नजर आती हैं। रॉड शेप्ड और कॉल्ड बेसिलाई, ये वाले जो पार्ट है सेंटर वाला ये बेसिलाई कहलाते हैं। स्फेरिकल जो हैं वो कोकाई कहलाते हैं, और जो स्पाइरल होते हैं उनको हम स्पाइरेला या स्पाइरोकीट्स कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए कोकाई के अंदर फिर स्टेफाइलोकोकाई, डिप्लोकोकाई और स्ट्रेप्टोकोकाई हैं, ये चेन फॉर्म में बना रहे हैं। ये दो स्फीयर्स मिले हुए हैं तो डिप्लोकोकाई, और जब ये क्लस्टर्स बना रहे हैं तो स्टेफाइलोकोकाई। इसी तरह रॉड शेप बैक्टीरिया बेसिलाई है, स्ट्रेप्टोबैसिलाई और कोकोबैसिलाई। उसके अलावा विब्रोस, स्पाइरेला और स्पाइरोकीट्स, ये उनकी शेप देखें, ये स्पाइरल है, कुछ फ्लैजेलेटेड हैं, फ्लैजेला उनके साथ अटैच है। तो ये कोकाई, रॉड्स और स्पाइरल, ये तीन तरह के, दे आर बेस्ड ऑन देयर बेसिक शेप्स। थर्ड फैक्टर टू क्लासिफाई बैक्टीरिया इज based on their ability to utilize oxygen. Those that thrive in an oxygen-rich environment are called aerobic. Those that grow best without oxygen are called anaerobic. जो ऑक्सीजन के बगैर सर्वाइव कर जाते हैं, जो बैक्टीरिया ऑक्सीजन के बगैर अपनी ग्रोथ और अदर मैकेनिज्म्स कंटिन्यू करते हैं, उनको हम एनारोबिक बैक्टीरिया कहते हैं। और जो बैक्टीरिया अपनी ग्रोथ और अदर जो उनके प्रोसेसेस हैं उसके लिए ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं, those are called as aerobic bacteria. Some organisms have ability to change their metabolism and survive in either aerobic or anaerobic conditions depending on their external environment. तो कुछ ऑर्गेनिज्म इस तरह के मैकेनिज्म अडॉप्ट कर लेते हैं कि वो बोथ कंडीशंस में सर्वाइव कर सकते हैं, जैसा कि उनके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट या सराउंडिंग का ऑक्सीजन लेवल। Antibacterial drugs differ in their effectiveness in treating aerobic versus anaerobic bacteria. As we have seen in previous slide कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए डिफरेंट एंटीबायोटिक यूज होती हैं। ग्राम पॉजिटिव को ट्रीट करना है तो अदर एंटीबायोटिक यूज करेंगे, ग्राम नेगेटिव को करना है तो ट्रीट करना है तो हम डिफरेंट एंटीबायोटिक यूज करेंगे। इसी तरह एरोबिक और एनाएरोबिक के लिए भी हम डिफरेंट एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं। Now we will classify anti-infective drugs. पहले हमने देखा कि बैक्टीरिया को हमने किस तरह क्लासिफाई करना है, उसके लिए हमने तीन डिस्क्रिप्टिव मेथड देखे। Now we will classify anti-infective drugs. Anti-infective is a general term that applies to any drug that is effective against pathogens. अब ये anti-infective, antimicrobial, ये वो टर्मिनोलॉजीज हैं जो हम किसी भी ड्रग के लिए यूज करते हैं जो पैथोजेंस की पैथोजेनिसिटी को कंट्रोल करने के लिए यूज होती हैं। In its broadest sense, an anti-infective drug may be used to treat bacterial, fungal, viral or parasitic infection. The most frequent term used to describe an anti-infective drug is antibiotic. अब हम एंटीबायोटिक जो है वो मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, चाहे वो एंटी फंगल है, एंटी वायरल है या जो भी है। तो ये क्लिनिकली हम इसको इंटरचेंजेबली हम इन टर्म्स को यूज करते हैं। कहीं पे हम एंटी इन्फेक्टिव कह देते हैं, कहीं पे एंटी माइक्रोबियल, कहीं पे एंटीबायोटिक और कहीं पे एंटी वायरल। तो ये तमाम टर्मिनोलॉजीज जो हैं वो क्लिनिकल सेटिंग में इंटरचेंजेबली यूज होती हैं, लेकिन टेक्निकली एंटीबायोटिक्स का और एंटी बैक्टीरियल का डिफरेंस है, जो हम लेक्चर में डिस्कस भी कर चुके हैं कि एंटीबायोटिक रेफर टू अ नेचुरल सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय अ बैक्टीरिया दैट कैन किल अदर बैक्टीरिया। तो एंटीबायोटिक वो सब्सटेंस है, वो नेचुरल सब्सटेंस है जो बैक्टीरिया से प्रोड्यूस होता है और बैक्टीरिया को किल करने के लिए यूज किया जाता है। Actions of anti-infective drugs.
The primary goal of antimicrobial therapy is to assist the body's defenses in eliminating a pathogen. ये हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि हम बॉडी से पैथोजेंस को एलिमिनेट करें. Medications that accomplish this goal by killing bacteria are called bactericidal. Some drugs that do not kill the bacteria but instead slow their growth, allowing the body's natural defenses to eliminate the microorganisms. These growth slowing drugs are called as bacteriostatic. तो हम दो टर्म्स इसमें अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, एक बैक्टीरियोसिडल है और दूसरा बैक्टीरियोस्टैटिक. बैक्टीरियोस्टैटिक वो हैं जो ग्रोथ को स्लो डाउन करती हैं किसी भी बैक्टीरिया की, और बैक्टीरियसिडल वो हैं जो बैक्टीरिया को किल कर देती है. नेक्स्ट है रेजिस्टेंस, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस. इसमें डिफरेंट मैकेनिज्म्स हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू विल स्टडी द एंटीबायोटिक्स और एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स. आपको उनमें रेजिस्टेंस का जो टॉपिक है वो उसमें डिस्कस किया जाएगा इंडिविजुअली. उसमें उनके जो मैकेनिज्म्स हैं वो डिफरेंट हैं. तो हम यहाँ पे कंबाइन तमाम मैकेनिज्म्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन जब हम ड्रग्स पढ़ रहे होंगे तो वहां पे फिर आप इनको कोरिलेट कर सकते हैं. द फर्स्ट थिंग इज टू स्टॉप द एंटीबायोटिक फ्रॉम रीचिंग इट्स टारगेट. किसी भी एंटीबायोटिक ने जब अपना एक्शन शो करना है तो उसके लिए जरूरी है कि वो बैक्टीरियल सेल के अंदर एंटर हो. तो बैक्टीरिया जो रेजिस्टेंस शो करते हैं, जो एंटीबायोटिक अपना असर शो नहीं कर सकती, उसमें वो डिफरेंट मैकेनिज्म्स अडॉप्ट करते हैं. द फर्स्ट इज द पंप द एंटीबायोटिक आउट फ्रॉम द बैक्टीरियल सेल. तो ये पहला मैकेनिज्म है कि वो जो एंटीबायोटिक बैक्टीरियल सेल के अंदर एंटर हुई थी उसको पंप आउट कर देते हैं. बैक्टीरिया कैन प्रोड्यूस पंप्स दैट सिट इन देयर मेम्ब्रेन और सेल वॉल. These so-called efflux pumps are very common in bacteria and can transport a variety of compounds such as signal molecules and nutrients. Normally ये pumps हम इस पर्पस के लिए बैक्टीरिया यूज करता है. Some of these pumps can also transport antibiotics out from the bacterium. In this way, lowering the antibiotic concentration inside the bacterial cell. In some cases, mutations in bacterial DNA can make the bacteria produce more of certain pumps, which in turn increase the resistance. अब यहाँ पे जो बैक्टीरियल म्यूटेशंस की बात की है, डीएनए की म्यूटेशन की बात की है, दैट इज डिस्कस्ड इन कमिंग स्लाइड. यहाँ पे मैं ब्रीफली आपको बता दूं कि जिस वक्त बैक्टीरिया ग्रो करता है तो उसकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, वो मल्टीप्लाई होता है. विद इन मिनट्स वो मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जाता है. उसकी कन्वर्शन या डिवीजन के दौरान वहां पे बाई चांस उसके जो डीएनए है उसके अंदर म्यूटेशन हो जाती है, और म्यूटेशन की वजह से वो डिफरेंट मैकेनिज्म्स अडॉप्ट कर लेते हैं अगेंस्ट द एंटीबायोटिक, और वो रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है. एट द एंड ये होता है कि जो एंटीबायोटिक्स हम एक्सोजीनियसली एडमिनिस्टर कर रहे हैं वो ऐसे बैक्टीरिया जो ससेप्टेबल हैं, जो उस एंटीबायोटिक से किल हो सकते हैं, वो मर जाते हैं, और जो रेजिस्टेंट बैक्टीरिया हैं वो बच जाते हैं, और फिर वो दे आर फ्री टू मल्टीप्लाई. फिर वो रेजिस्टेंट बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होते हैं हमारे बॉडी में और वो इन्फेक्शन कॉज करते हैं, और उनके अगेंस्ट फिर एंटीबायोटिक्स काम नहीं करती. ये जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या ये जो बैक्टीरिया जो रेजिस्टेंट हैं, ये एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में ट्रांसफर भी हो सकते हैं. इसको हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे कि ये कैसे हुआ मैकेनिज्म. नेक्स्ट जो मैकेनिज्म है दैट इज डिक्रीज्ड परमिएबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन दैट सराउंड्स द बैक्टीरियल सेल. Certain changes in the bacterial membrane make it more difficult to pass through. In this way, less of the antibiotics gets into the bacteria. अब पहला जो स्टेप था कि अगर एंटीबायोटिक सेल वॉल या बैक्टीरियल आउटर मेम्ब्रेन को क्रॉस करके एंटर हो गई तो वहां पे पंप ऐसे लगे हुए थे, उन्होंने उनको बाहर पुश कर दिया. दूसरा ये था कि उसकी परमिएबिलिटी ही डिक्रीज हो गई कि कोई एंटीबायोटिक बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन या वॉल को क्रॉस ना कर सकी. Number C is destroy the antibiotic. There are bacterial enzymes that can inactivate the antibiotics. अब होता ये है कि कुछ बैक्टीरिया इस तरह के एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं अपने सराउंडिंग में कि वो एंटीबायोटिक जब उधर आती है तो वो उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, इनएक्टिवेट कर देते हैं. इसकी जो एग्जांपल है वो है कि बीटा लैक्टेमेज दैट डिस्ट्रॉयज द एक्टिव कंपोनेंट ऑफ बीटा लैक्टेम रिंग ऑफ पेनिसिलिन्स. पेनिसिलिन का जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि पेनिसिलिन के जो केमिकल स्ट्रक्चर है उसमें एक रिंग है
जिसको हम बीटा लैक्टेम रिंग कहते हैं। उस रिंग को डिस्ट्रॉय करने के लिए बैक्टीरिया बीटा लैक्टेमेज एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, जो उस रिंग को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जो कि पेनिसिलिन की एक्टिविटी के लिए इंपॉर्टेंट है। हमने सल्फोनामाइड ड्रग्स के अंदर देखा कि एक बेसिक न्यूक्लियस है, हम उसके स्ट्रक्चर के अंदर चेंज नहीं कर सकते। अगर हम उसमें कोई चेंज करते हैं तो फिर उसकी एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी वो लॉस हो जाएगी। सिमिलरली पेनिसिलिन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें एक रिंग है जिसे हम बीटा लैक्टेम रिंग कहते हैं। उस रिंग को डिस्ट्रॉय करने के लिए जो बैक्टीरिया हैं वो बीटा लैक्टेमेज प्रोड्यूस कर देते हैं और एंटीबायोटिक जो है वो इनएक्टिव हो जाती है। These antibiotics, penicillins, are extremely important antibiotics for treating human infection. In later years, bacteria that produce extended spectrum beta lactamases, so-called ESBL producing bacteria, have become major problem. They can degrade a whole spectrum of beta lactam antibiotics, sometimes also the last resort drugs available for infection with these bacteria. Ab, with the passage of time, डिफरेंट ड्रग्स डेवलप की गई टू ओवरकम दिस बीटा लैक्टेमेज एंजाइम। लेकिन कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी हैं जिसको हमने ESBL कहा कि ये एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टेमेजेस हैं। तो हम एडवांस जो जनरेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स हैं उनको हम यूज़ करते हैं एक क्लास की, लेकिन एट द एंड ये होता है कि वो जो लास्ट ड्रग होती है जो बैक्टीरिया के लिए हम यूज़ कर रहे हैं जिसको हम मोस्ट एडवांस कहते हैं, तो ESBL प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया उसको भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। पार्ट ई है इसका, द मॉडिफाई द एंटीबायोटिक। बैक्टीरिया कैन समटाइम प्रोड्यूस एंजाइम्स दैट आर कैपेबल ऑफ एडिंग डिफरेंट केमिकल ग्रुप्स टू एन एंटीबायोटिक। हम बार बार ये उसके जो एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी के लिए एक ख़ास जो स्ट्रक्चर है किसी भी एंटीबायोटिक का, उसकी इंपॉर्टेंस को बार बार हम डिस्कस कर रहे हैं। अब या तो वो डिस्ट्रॉय हो जाए स्ट्रक्चर, या उसके अंदर हम केमिकली कोई बैक्टीरिया उसमें कोई मॉडिफिकेशन करते, तो वो एंटीबायोटिक अपना एक्शन शो नहीं करेगी। इसकी वजह से क्या होगा, दिस इन टर्न प्रोहिबिट्स द बाइंडिंग बिटवीन एंटीबायोटिक एंड इट्स टारगेट इन द बैक्टीरियल सेल। जो सेकंड है दैट मॉडिफाई और बाईपास द टारगेट ऑफ एंटीबायोटिक्स। इसमें जो फर्स्ट पार्ट है वो कैमोफ्लेज द टारगेट। Changes in the composition or structure of the target in the bacterium resulting from mutation in bacterial DNA can stop the antibiotic from interacting with the target. अब एंटीबायोटिक ने अपने टारगेट के साथ इंटरेक्ट करना था, लेकिन बैक्टीरिया ने अपनी म्यूटेशंस के बाद उस टारगेट को ही चेंज कर दिया, तो फिर एंटीबायोटिक आके अपने टारगेट को आइडेंटिफाई नहीं कर सकती और जाहिर है फिर वो टारगेट एक तरह से कैमोफ्लेज हो गया। Alternatively, the bacteria can add different chemical groups to the target structures, in this way shielding it from the antibiotic. पहले जो पार्ट था उसमें हमने ये देखा कि एंटीबायोटिक का स्ट्रक्चर चेंज कर दिया बैक्टीरिया ने इस तरह के केमिकल ग्रुप्स एंटीबायोटिक में ऐड किए कि वो एंटीबायोटिक की जो एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी थी वो लॉस कर गई। दूसरे साइड पे या दूसरी तरफ बैक्टीरिया ये कर रहे हैं कि जो टारगेट था किसी भी एंटीबायोटिक का, उस टारगेट के अंदर केमिकल चेंज कर दिया जिसकी वजह से वो टारगेट डिटेक्ट ना हो सका। बी, एक्सप्रेस अल्टरनेटिव प्रोटीन्स। सम बैक्टीरिया आर एबल टू प्रोड्यूस अल्टरनेटिव प्रोटीन्स दैट कैन बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ द वंस दैट आर इनहिबिटेड बाय द एंटीबायोटिक्स। फॉर एग्जांपल, बैक्टीरियम स्टेफिलोकोकस ऑरियस कैन acquire the resistance gene MAC-A and produce a new penicillin binding proteins. जो पेनिसिलिन्स हैं अपना एक्शन उस वक्त शो करती हैं जब वो उनके ट्रांसपोर्ट के लिए उनको पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन चाहिए होती है। तो एस आरियस जो उसमें एक जीन है जिसे हम MAC-A जीन कहते हैं, उसकी वजह से वो रेजिस्टेंस एक्वायर करता है और न्यू प्लाज्मा पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स को वो प्रोड्यूस कर देता है। These proteins are needed for bacterial cell wall synthesis and are target of beta lactam antibiotics. अब ये जो प्रोटीन्स हैं ये सेल वॉल की सिंथेसिस में भी यूज होती हैं और बीटा लैक्टेम एंटीबायोटिक्स का टारगेट भी है। द न्यू पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन हैज लो एफिनिटी टू बीटा लैक्टेम एंटीबायोटिक्स and is thus resistant to the drug and the bacteria survive the treatment. This type of resistance is the basis in MRSA, that is abbreviated as this for this methicillin resistant as RES. Reprogram the target.
Sometimes bacteria can produce a different variant of a structure it needs. For example, vancomycin resistant bacteria make a different cell wall compared to susceptible bacteria. ऐसा बैक्टीरिया जो वैंकोमाइसिन से ससेप्टेबल था, यानी वैंकोमाइसिन उस बैक्टीरिया को इफेक्ट कर सकती थी, तो उस बैक्टीरिया ने रेजिस्टेंस डेवलप की और डिफरेंट सेल वॉल अपने इर्द गिर्द बना ली, जिसके अगेंस्ट वैंकोमाइसिन के अगेंस्ट फिर उस बैक्टीरिया ने रेजिस्टेंस शो की. The antibiotic is not able to interact as well with this type of cell wall. Some bacteria are naturally resistant to certain antibiotics. Imagine, for example, an antibiotic that destroys the cell wall of the bacteria. If the bacterium does not have a cell wall, the antibiotic will have no effect. यहाँ पे सिंपली उन्होंने ये बताया है कि ऐसे बैक्टीरिया या ऐसी एंटीबायोटिक्स जो हम क्लेम करते हैं कि दे आर इफेक्टिव, दे आर acting against the cell wall synthesis, or they are inhibitors of peptidoglycan or inhibitors of cell wall synthesis, या बैक्टीरियल सेल वॉल को डिस्ट्रॉय करती हैं. लेकिन अगर कोई ऐसा बैक्टीरिया जिसके बाहर सेल वॉल ही नहीं है या उसके सिंथेसिस का प्रोसेस एक्टिव नहीं है, तो फिर वो एंटीबायोटिक वहां पे इफेक्टिव नहीं होगी. दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज इंट्रिंसिक रेजिस्टेंस. When a bacterium that was previously susceptible to an antibiotic evolves resistance, it is called as acquired resistance. और कोई बैक्टीरिया जो पहले उस एंटीबायोटिक से ससेप्टेबल था, मींस एंटीबायोटिक उस पर अपना असर शो कर रही थी, लेकिन बाद में उसने किसी प्रोसेस की वजह से रेजिस्टेंस अडॉप्ट कर ली, तो उसे हम कहेंगे कि एक्वायर्ड रेजिस्टेंस है. इंट्रिंसिक रेजिस्टेंस थी और एक्वायर्ड रेजिस्टेंस. एक्वायर्ड रेजिस्टेंस हमने नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन की है. ये यहाँ पे इस डायग्राम में वो मैकेनिज्म्स दिखाए हुए हैं कि इसकी परमिएबिलिटी को हमने डिक्रीज कर दिया, इफ्लक्स बढ़ा दिया, ड्रग इनसाइड से आउटसाइड की तरफ मूव कर गई, अपटेक डिक्रीज हो गई, और इंट्रासेलुलर भी इसने अल्टरनेटिव एंजाइम उसने प्रोवाइड कर दिए, उसकी वजह से जो ड्रग इसने ए से बी में कन्वर्ट होना था, तो वो इस ड्रग जो है वो इस बैक्टीरियल एंजाइम को इनएक्टिवेट नहीं कर सकती और अपना एक्शन शो नहीं करेगी. अब हम बात करेंगे एक्वायर्ड रेजिस्टेंस की. एक्वायर्ड रेजिस्टेंस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैव एबिलिटी टू रेप्लिकेट एक्सट्रीमली रैपिडली. ये बात हम पहले कर चुके कि बैक्टीरिया जो हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत तेजी से रेप्लिकेट करते हैं अंडर सूटेबल कंडीशंस. E. coli can produce millions of cells every 20 minutes. During this exponential cell division, bacteria make frequent errors while duplicating their genetic code. These mutations occur spontaneously and randomly throughout the bacterial chromosome. अब ये बैक्टीरिया के पूरे क्रोमोसोम के अंदर किसी भी जगह पे ये म्यूटेशन हो सकती है और वो एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस का बायस बन सकती है. एंटीबायोटिक हेल्प टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरियल स्ट्रेन्स. अब एंटीबायोटिक किस तरह हेल्प कर रही हैं ऐसी बैक्टीरियल स्ट्रेन्स की डेवलपमेंट में जो कि ड्रग के अगेंस्ट रेजिस्टेंट है. ये 7 डायग्राम में हमने यहाँ पे शो किया हुआ है कि ये इन्फेक्शन हुई किसी भी जगह पे, हमने यहाँ पे पेट्री डिश में दिखाया हुआ है कि बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं और इसके अंदर ये बैक्टीरिया ऐसा है जो कि रेजिस्टेंट है. अब हमने एंटीबायोटिक जिस वक्त दी तो उसने इन ऑर्गेनिजम्स को किल कर दिया और सिर्फ ग्रीन जो था दैट वाज रेजिस्टेंट. एंटीबायोटिक किल ऑल ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट द रेजिस्टेंट वन, तो सिर्फ रेजिस्टेंट स्ट्रेन जो थी वो सर्वाइव कर गई. तीसरे स्टेप में क्या हुआ, आफ्टर सम टाइम जो रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म था दैट रिमेन्ड हैज रैपिडली डिवाइडेड टू इन्फेक्ट द पेशेंट. एंटीबायोटिक इज नो लॉन्गर इफेक्टिव. अब ये जो रेजिस्टेंट स्ट्रेन थी जो यहाँ से बच के इधर आई और विद द पैसेज ऑफ टाइम अब रेजिस्टेंट स्ट्रेन ने मल्टीप्लाई कर लिया पेशेंट के बॉडी में, तो उसके अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स काम नहीं करेंगी. तो इन दिस वे एंटीबायोटिक्स help to promote the development of drug resistant bacterial strains. Killing population of bacteria that are sensitive, ये जो यहाँ पे हमें
लाइट येलोइश और ऑरेंज कलर में नजर आ रही हैं, these are sensitive to drug, leaves behind those microbes that possess mutations that made them insensitive to the effect of antibiotics. अब जो रिमेनिंग था वो insensitive था to the antibiotics. These drug resistant or insensitive bacteria are then free to grow unrestricted by their neighbors that were killed by the antibiotics, and the patient soon develops an infection that is resistant to conventional drug therapy. This phenomena is called as drug acquired resistance. Bacteria may pass the new resistance gene to other bacteria through conjugation. The direct transfer of small pieces of circular DNA is called as plasmid. So it is the bacteria that have become resistant, not the patient. An individual with an infection that is resistant to certain antibacterial drug can transmit the resistant bacteria to others. The widespread and sometimes unwanted use of antibiotics has led to a large number of resistant bacterial strains.